ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ। ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਸਚ ਰੰਗ, ਇਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ। ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਸਚ ਰੰਗ, ਇਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਗੁੜਾਵਿਆ, ਦਿਸਨ ਸਭੇ ਛਾਰ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣ ਹਾਰ। ਵਾਣ ਤਿਣ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ, ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਹਰ ਮਿਲਣਾ ਨੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਜਿਨੀ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਹਉ ਦਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਇਆ ਕਰ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਣ ਹਾਰ। ਸਾਵਣ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਇਆ ਕਰ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਣ ਹਾਰ। ਸਾਵਣ ਦਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਹਾਰ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਗੰਮੀ ਸਾਗਰ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਮੋਲਕ ਸਵਾਦ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਅਸਾੜ ਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਬਤੀਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 12 ਮਹਾਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ। ਸਾਵਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਸਰਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਸ ਭਰਪੂਰ, ਕਾਮਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਜੋ ਅੱਛਾਈ ਹੈ ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਥਾਏ ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ,
मेघे नु फरमान हुआ वरसो कृपा तार। कि बबीहा नाम का एक पंछी जो सारा साल पानी तो बिना रहन नू मंजूर हो सकता है, वो हर वेले पानी तो प्यासा रहिंदा है, पर वो बरसात विच आउण वाली एक स्वांती बूंद दी इंतजार दे विच पूरा साल प्यासा तृप्ता रहिंदा है। तो जब सावन का महीना आउंदा है, बरसात आउंदी है, उस बरसात दे अंदर एक सावंती बूंद जो कि उस बूंद दे नाल वो बबीहा अपनी प्यास बुझाउंदा है ते वो 6-7 महीने दे वास्ते तृप्त हो जाता है। उस बबीहे की पुकार पातशाह जी श्रवण करते हैं। ते सावन का महीना कला बबीहा नहीं पुकारदा, कई जीव जंतुओं के वास्ते सावन का महीना खुशियां भरा जीवन लैके आउंदा है। पातशाह जी ने गुरबाणी के अंदर सानू बहुत ही सोहने वचनों में समझाया। गुरु नानक देव पातशाह जी कहते नानक सावन जे वसै चौ उमाहा होए। कहते जो सावन का महीना है ना, 4 मुख जीवां दे वास्ते खुशियां खेड़े का समा है। नानक सावन जे वसै चौ उमाहा होए, नागा मिर्गा मच्छियां रस्सियां घलतन होए। नागा का अर्थ है सप। सप्पां दे वास्ते जिहड़ा सावन का महीना बड़ा सुखियां भरिया हुंदा है, क्योंकि जिहड़े सप हैं उन्हां दे अंदर बहुत अग्नि हुंदी है, जहर हुंदा है। तुसीं वेख्या होएगा कि सप सुनिया भी जाता है, तो असीं अजकल जो डिस्कवरी चैनल विखांदे हैं कि जो चंदन के बूटियां, चंदन में बहुत ठंडियाई हुंदी है, तो चंदन के बूटियां दे कोल आम तौर पर सप वेखण नूं मिलदे हैं, क्योंकि सप दे अंदर जो जहर है, जो तपश है, उसनूं बहुत परेशान करती है। तो जिहड़ा नाग है वो सदा ही सावन के महीने की इंतजार करता है, कद सावन का महीना आए, वनस्पति दे विच फिर दोबारा रंगत आए, तो मैं इस तपश तो बच सकां। दूसरी गल, सारी गर्मी जो चूहे हैं अपनी खुड्डां विच रहिंदे हैं, पर जब सावन का महीना आउंदा है वो खुड्डां विचों विच पानी भर जाता है, तो जिहड़े चूहे हैं बाहर निकल आउंदे हैं, तो खुड्डां वेलियां हो जांदियां, तो वो सप्पां दे वास्ते बने बनाए घरां दा इंतजाम हो जाता है। तो सावन का महीना सप्पां दे वास्ते बड़ा ही खुशियां भरिया है। पातशाह जी ने दूसरा उदाहरण दिता सीगा नागा मिर्गा। मिर्गा का अर्थ होंदा है हिरन। हिरन जिहड़ा है वो सारी गर्मी पानी दे विच प्यासा तरसदा होया जंगलों विच इधर उधर ठोकरां खांदा है, पर उन्हें किते पानी नहीं मिलता। जिथे भी वेखदा है हरिया घाह नहीं मिलता, वो वनस्पति दे विच हरियाली नूं तरसदा रहिंदा है। पर जब सावन का महीना आउंदा है, सावन के महीने दे विच पानी पैण दे नाल जिहड़ा सुक्का घाह भी हरा हो जाता है, रेतली जमीन विच भी, बंजर जमीन विच भी घाह उगना शुरू हो जाता है। उहदे खाने का प्रबंध, उहदे पानी पीण का प्रबंध, उहदे रहण का प्रबंध सुखाला हो जाता है। वो जिहड़ा हिरन है सावन के महीने में बहुत खुश होता है। तीसरा है मच्छियां। मच्छियां सारी गर्मी एको पानी दे विच रह के बदबू नाल परेशान हो जांदियां। पानी विच बदबू आउण लग पैंदी है, पानी बड़ा गर्म कसैला जा हो जाता है, बड़ा मैला जा हो जाता है। तो पातशाह दे अगे मच्छियां भी अरदास के रब्बा कर सावन का महीना आवेगा, तो सावन का महीना साडे वास्ते सुख लैके आएगा। चौथा है सावन का महीना रस्सियां घड़तन होए। जिन्हां राजधारियां दे कोल, जिन्हां अमीरां दे कोल बेअंत पैसा है, सावन का महीना कहते उन्हां दे वास्ते भी खुशियां ही लैके आंदा है। उन्हां दा 4 दिन बिजनेस ना चले कोई फर्क नहीं पैंदा, उन्हां दी 4 दिन दुकान ना खुले कोई फर्क नहीं पैंदा। आम तौर पर असीं वेखदे हां ना सावन का महीना बाहर मींह पै रिहा हुंदा है, तो वो अमीर लोग अंदर बैठ के पकवान खा रहे होंदे हन, अंदर बैठ के वो आनंद मान रहे होंदे हन। तो सावन का महीना कहते उन्हां दे वास्ते भी खुशियां भरिया हुंदा है। पर जिथे खुशी आई, पातशाह कहते सावन का महीना उत्थे दुख भी लैके आया। पातशाह जी ने बाणी में आख्या नानक सावन जे वसै चौं विछोड़ा होए। कहते जे सावन का महीना खुशियां लैके आया, तो इस सावन के महीने के दुख भी किते ना किते लाया। हुण आपां वेखना कि दुख किते आया। आपां पहला गल खुशी की कीती सी कि सावन का महीना खुशियां लैके आउंदा, खुशियां वंडदा है। पर गुरु नानक देव पातशाह जी ने दुख की भी गल कीती है। कहते गाई पुत्ता नित ना
पंथी चाकर होए। गाय पुत्तां दा अर्थ है बलद। बलद पूरा साल बन्ने रहिंदे हन किले दे नाल, पूरा साल उन्हां नूं सेवा होंदी है, घाह पट्ठा खवाया जाता है, तो बड़ी ऐश की जिंदगी बतीत कर रहे होंदे हन। पर जब सावन का महीना आउंदा है ना, किसान कहता हुण तां मींह पै गया है, हुण मैं कंधार करना है, मैं झोना लाण की तैयारी करनी है, फसल की तैयारी करनी है। उन्हां दीयां संगलां खोल लईआं जांदियां ते किले तो उन्हां नूं आजाद करके उन्हां दे उत्ते तगड़े तगड़े पंजाली दे भार पाए जाते हैं। पिछे उन्होंने हल लाए जाते हैं तो उन्होंने पैड़ियां दे विच जोतिया जाता है। बलद बड़ा परेशान होंदा है, कहता वेखो पूरा साल मैं आनंद की रोटी खा रहा सी, ना ये सावन का महीना आउंदा, ना ये पानी वसदा, तो ना मेरी ऐश की जिंदगी खराब होंदी। जिहड़ा बलद है ना बड़ा परेशान है। निर्धन इंसान, जो गरीब इंसान है जिसने रोज कमा के खाना है, जो गरीब इंसान जिसका रहने का भी कोई खास इंतजाम नहीं है, वो सावन के महीने में बहुत परेशान होंदा है। क्योंकि सावन का महीना मीह लैके आउंदा है, उहदा कदों घर चो रहा है, कभी एक बन्नों उहदे घर विच पानी आ रहा है, कभी उहदी झोपड़ी डिग्गण का खतरा है, कभी उहदी रोजगार का खतरा है। वो गरीब इंसान सावन के महीने तो बहुत परेशान होंदा है। तीसरा इंसान पातशाह ने आख्या पंथी। पंथी का अर्थ होंदा राहगीर। राहगीर असीं वेखदे हां कईयां दा काम होंदा है कि सारा साल एक जगह तो दूसरी जगह सफर करके कमाउणा। वो राहगीर इंसान भी सावन के महीने तो बहुत परेशान है, क्योंकि वो फेरी नहीं लगा सकता, वो किते जा नहीं सकता, रस्तियां भी चिक्कड़ हो जाता है, तो रस्ते खराब हो जाते हैं। तो राहगीरां दे वास्ते सावन का महीना दुखां भरिया हुंदा है। चौथी उदाहरण गुरु नानक देव पातशाह ने दिती सी चाकर। चाकर का अर्थ होंदा नौकर। जिहड़ा नौकर खेत विच काम कर रहा है, जिहड़ा नौकर का काम है मालक का कहना मनना, मालक दा बैठा होया अपने, जो पहला आपां गल कीती दसियां घालतन होए, मालक दा अपने घर विच बैठ के ऐश की जिंदगी बतीत कर रहा है, पर नौकर नूं काम विच लगाया होया, भावें मींह पै रहा, झक्खड़ आ रहा है, नौकर दी काम है नौकरी करनी, उन्हें नौकरी करनी है। तो नौकरी करने वाला इंसान बड़ा परेशान होता है कि मींह क्यों पै गया, ये सावन का महीना क्यों आया, मेरे जिहड़ा नौकरी करन दा जिहड़ा काम करन दा जिहड़ा तरीका सीगा, उस तरीके विच सावन का महीना अड़चन बन के आ गया। ये तो गल चली सावन की। पातशाह जी अगली पंक्ति विच कहंदे सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रत्ता सच रंग एको नाम आधार। तो जिन्हां ने अपना मन तन नाम विच रंग लिया, एक नाम का आधार बख्शिया है, कहते फिर वो दुनियावी झूठे रंगा तो, दुनियावी मायक पदार्थों तो बचदे होया उन्होंने वो पदार्थ झूठे सुआह लगन लग पैंदे हैं। विखिया रंग उड़ाविया, ये जो माया का रंग है ना उन्होंने कूड़ लगता है, विखिया लगता है। विखिया रंग उड़ाविया दिसन सभे छार, उन्होंने एक स्वाद की ढेरी लगते हैं, क्योंकि उन्होंने पता लग जाता है हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार। उन्होंने परमात्मा की नाम रूपी जो अमृत जल जिस दे वास्ते असीं दुनिया विच आए हैं, जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जियो छोडो वेश भेख चतराई, दुबदा ए फल नाही जियो। पातशाह जी कहते भाई तू तो इस अमृत रूपी बूंद नूं लैण वास्ते दुनिया च आया है। उन्होंने इस अमृत रूपी बूंद की कदर का पता लग जाता है। सत संगत जी परमात्मा की अमृत रूपी बूंद साड़ी दुनिया के अंदर ही है, पर सानू उसकी पहचान नहीं। जिस तरह पातशाह जी कहते ना घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध ना पाया, ज्यों कस्तूरी मृग ना जाना भ्रम दा भरम भुलाया। जिदा हिरद के अंदर कस्तूरी है, कस्तूरी नाभि विच है, उन्होंने खुशबू आ रही है, पर उस खुशबू नूं लभदा लभदा सारा जीवन अपना जंगलों के विच ठोकरां मार मार के गुजार लैंदा है। अंत दे विच उहदे प्राण भी चले जाते हैं, पर उस हिरन नूं अपनी कस्तूरी का नहीं पता लगता कि कस्तूरी कित्थे है। उन्हें एक घटना याद आ रही है कि एक जौहरी सीगा, उस जौहरी के पास बहुत बेशकीमती हीरा सी। उस हीरे की खासियत सी कि उस हीरे में इतनी चमक सी कि रात को जे तुसीं कमरे में रख दवो, उस बंद कमरे में दीवा बालन की लोड़ नहीं है, बल्ब जलाने की लोड़ नहीं है,
उस हीरे की चमक इतनी है, उस जौहरी का हीरा इतना बेशकीमती कि उस हीरे को वेखण के वास्ते लोग इकट्ठे हो जाते सन। जिथे किते वो महफिल लगी होवे ना, उस महफिल में जो हीरा कढ़ लवे तो लोग उस हीरे को नमस्कार करते सन। इत्थे तक दर्शना भी दे देंदे सन, उस हीरे की दर्शनी भेटा भी दे देंदे सन कि हीरा बड़ा कीमती है। इदां ही उन्हें एक महफिल लगाई हुई सी। उस महफिल दे विच उसने सामने हीरा रखिया। उस हीरे को वेख्या एक चोर ने, उस चोर दे निगाह पै गया हीरा। उसने उस जौहरी दे नाल दोस्ती लगाउणी शुरू कर दी। एक राह वल तुरे जा रहे हैं, दोस्ती लगाई है तो उन्होंने पुछदा भाई तू कित्थे चलिया? उन्हें दस्सिया मैं तो जी फलानी मंजिल वल चलिया। वो कहता चल मैं भी उधर नूं जाना है, जे कहें तो असीं दोस्त बन के राहगीर बन के तुरदे हाँ, साडा सफर सौखा लंघ जाएगा। जौहरी ने भी आख्या मैं कल्ला लंघ रहा सीगा, मेरे कोल हीरा भी हैगा, नाल मेरा कोई साथी हो जाएगा तो चोर लुटेरे तो मैं बच जावांगा। दोवां ने सफर शुरू किया। रात पै गई, कोई थां वेख के उन्होंने आराम करने वाले सोचा। रात को अपने कपड़े उतार के उन्होंने किली भी टंगे हैं। चोर सोचता रात को ये अपना हीरा किसी ना किसी कपड़े विच रख के सो जाएगा, मैं उहदे विचों हीरा कढ़ के अपना जिहड़ा काम पूरा कर लांगा। होया कि रात पई, दोवें जमे सो गए। रात चोर ने कोशिश की हीरे नूं लभण दी, हीरा लभ्या नहीं। सवेर हो गई। फिर उन्हें पूछा भाई तू तो कहना से हीरा चमक बड़ी मारदा, रात में कोई चमक चमक वेखी नहीं? कहना नहीं भाई चमक तो मारदा, तेनों मैं तू कल वेख लई। कहना चलो भी अज दा नहीं लगा, कल सही कोई ना कोई जेब रह गई होगी। सवेर फिर आउंदी है, सवेरे फिर वो सोचता है कि मैं अज रात नूं पक्का दा लगावांगा तो मैं हीरे नूं चोरी कर लांगा। साध संगत जी उन्हें फिर रात नूं दा मारिया। फिर उन्हें कपड़े फलोरे, जेबां फलोरियां, उन्होंने हीरा नहीं लभ्या। 2-3 दिन इस तरह ही चलता रहा। आखिर वो परेशान हो गया। अगले दिन उस जौहरी नूं कहंदा भाई तेरा हीरा नहीं मैनूं लभा, हुण मैं तेरी इस हीरे की सच्चाई जानने वास्ते मैं सच बोलण लगा। मैं कोई तेरा दोस्त नहीं हाँ, मैं तेरे हीरे नूं चोरन दे वास्ते तेरी दोस्ती नूं कबूल मन्निया सी, मैं तेरे नाल दोस्त बनिया। मैनूं दस तू हीरा रखदा कित्थे सीगा? वो कहता भाई मैं हीरा तो इस कमरे में रखता सीगा, पर फर्क ये सीगा मैं हीरा अपनी जेब में नहीं रखता सी, हीरा मैं तेरी जेब च रखता सी। रात को कपड़े उतारदा सी, मैं हीरा तेरी जेब में रख दिंदा सीगा, तू हीरे नूं मेरी जेब में लभदा सीगा ते तैनूं हीरा लभदा नहीं सीगा। साध संगत जी इस विसाखी तो सानूं ये सिक्ख्या मिलती है, ये नाम रूपी हीरा, ये बाणी रूपी हीरा साडे घर विच ही है, साडे जीवन विच ही मिल जाता है। ये अच्छाइयां साढ़े जीवन में ही हैं, पर असी दूसरे का जीवन लभदे हैं, असी दूसरी जगह भालते हैं, तो हमें हीरे की पहचान नहीं होती है। सो पातशाह जी ने सानू इस शब्द अंदर यही समझाउण दा सानू जो टीचा रखिया है कि हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवनहार, वण तिन प्रभ संग मौलिया समरथ पुरख अपार। जिसनों इस वनस्पति के अंदर परमात्मा दिख गया, जिसनों इस दुनिया के अंदर वाहिगुरु दिस पिया, जिसनों अपने माता पिता के अंदर, अपने परिवार के अंदर परमात्मा दिस पिया, कहते समझ लो उसने सचमुच ही इस हीरे की पहचान कर ली है। ते पातशाह जी अगले बंद दे विच सानू समझाउंदे ने, कहते हार मिलना नो मन लोचदा। फिर उस सिख का गुरु नूं मिलण दे वास्ते मन लोचदा है, ਉਹਦੇ अंदर एक तांग होंदी है कि मैं गुरु नूं मिलण वास्ते जाना है। भावें भगत फरीद जी कहते मीह भी अटन पै जाए ना, उस मीह दे उस गारे नूं टप्पण दे वास्ते भी तैयार हो जाता है। भगत फरीद जी का बहुत सोहना श्लोक है, फरीदा गलिए चिक्कर दूर कर नाल प्यारे ने। कहते मैं ये परमात्मा वाल तुरदा ना, रस्ते दे विच चिक्कड़ है। दुनियावी उदाहरण दिंदे हन कि मैं अपने सज्जन नूं मिलण वास्ते चलिया, रस्ते दे विच चिक्कड़ दा गारे दा रस्ता है ते मेरे कपड़े चिट्टे हैं, कपड़े मेरे चिट्टे हैं, कपड़े मेरे बड़े साफ हैं। जे मैं उधर नूं जाना तो मैनूं चिक्कड़ दे छट्टे पै जांदे हन, ते जे मैं चिक्कड़ वल नहीं जांदा, जे मैं उस रस्ते वल नहीं जांदा ते मेरे प्यारे दा घर मेरे तो छुड़ जांदा है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ
कि असी गुरु वाल तुरदे हां सानू विकारां दा चिक्कड़ साडे उपर पैंदा है। असी 2 दिन बाणी पढ़ लई असी हंकारे जाने, असी जी सवेरे उठ के बाणी पढ़ते हैं, असी 2 दिन चंगी काम कर लई असी उहदे विच हंकार दे चिक्कड़ विच पै जाने आ। पातशाह जी कहते फरीदा गलिए चिक्कड़ दूर कर, नाल प्यारे ने चलां तां भिज्जै कमली, राहां तां टुटै ने। तो भगत फरीद जी अगले श्लोक विच बचन करदे कहंदे भावें चिक्कड़ होवे लख वार, भिजो सिजो कमली अल्लाह वरसै में। कहंदे भावें जितना मर्जी चिक्कड़ होवे, मींह पैंदा रहे विकारां दा, कहंदे विकार भी तो परमात्मा दे बनाए हैं, ये माया भी तो परमात्मा दी बनाई है। भिजो सिजो कमली अल्लाह वरसै में, जाए मिला तिना सजना टूटा नाई ने। कहते मैं तो जाके उस रब का दर खड़कावांगा, मैं तो उस अपने सज्जन का दर खड़कावांगा। एक दिन नहीं मैं उठाएगा, दूजे दिन मेरा बुआ नहीं खोलेगा, एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि मेरा उस सज्जन मेरा बुआ खोल के इंतजार करेगा। पातशाह जी कहते सतगुरु वाल तुरता सही, चार नशान गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आके होए लेत है। कोशिश तो करिए सज्जन नूं मिलण दी, असी चिक्कड़ नूं वेख के पिछे हो जाने आ। 4 दिन असी गुरु के रस्ते ते तुरदे आ, असी पिछे हो जाने आ। ते पातशाह जी कहंदे भाई इस चिक्कड़ तू ना डर, ये सावन का महीना सानूं ये समझांदा है कि तांग लैके आ कि जिवें सावन के महीने विच इतना वरखा हो रही है, पर जिहड़ा एक सज्जन इंसान है ना, वो अपने दूसरे सज्जन नूं मिलण दे वास्ते चिक्कड़ की परवाह नहीं करता। असी भी दुनियावी विकारां दे, दुनियावी बंधनां दे, दुनियावी भरमां दे चिक्कड़ की परवाह ना करिए। हर मिलना नो मन लोचदा, करम मिलावन हार। ते कहंदे जिनी सखिए प्रभ पाया, हाउ तिन कै सद बलिहार। जिस जीव रूपी स्त्री ने परमात्मा नूं पा लिया, जिस जीव रूपी स्त्री ने वाहिगुरू दे नाल प्रीत लगा लई है, कहंदे मैं उस जीव रूपी स्त्री तो बलिहार जाना, मैं उस जीव रूपी स्त्री तो कुर्बान जाना जिन्हां ने आपां शहीदी दिहाड़ा मनाया भाई तारू सिंह जी दा। उन्होंने जान की परवाह नहीं की। वो कहते भाई तुसी भावें मेरा खोपड़ ला दो, पर मैं सिक्खी तो बेमुख नहीं हो सकता, मैं केसां नूं कैंची नहीं लगन देनी, क्योंकि सचमुच उन्हां दा प्यार सीगा परमात्मा दे नाल, वाहिगुरू दे नाल। पर असीं अज फैशन नूं वेखदे हां, साडे मन विच ख्याल आ जांदा है अगे सानूं माड़े लगदे पे। अज साडा लिबास जो दुनिया विच असीं वेख रहे हां, उस लिबास दे विच कितना किते साडी जो गुरमुखता नज़र नहीं आउंदी। ते पातशाह जी कहंदे भाई जद तूं सचमुच गुरु नाल प्यार पावेंगा, ते कहंदे नानक हर जी मया कर शब्द सवारण हार, फिर तेरा जिहड़ा गुरु दा शब्द है ना, तेरा जीवन सवार देगा। अरदास कर पातशाह कृपा कर, मया कर मेरे ते दया कर, मेरे ते रहम कर, कि जिहड़ा मेरा भी जीवन है शब्द नाल सवर जाए। सावन तिना सुहागणी जिन राम नाम उरहार। असल विच सुहागण इस्त्री वो मन्नी जाती है, दुनियावी तौर ते लोकी कहंदे जिन्हें हार श्रृंगार किया होवे, कहंदे तू भी सुहागण इस्त्री बन जाएगा जब तेरी जिंदगी विच गुरु दी बाणी दी, गुरु दी सिक्ख्या दा, गुरु दे शब्द दा श्रृंगार होएगा। जब तेरे अंदर सत संतोख दया धर्म धीरज हलीमी परोपकार ये श्रृंगार जब तू लैके तुरेगा, तेरा भी जीवन जड़ा सफल हो जाएगा। सो साध संगत जी गुरु साहब के अगे अरदास करी पातशाह जी कृपा करन, सानू भी किते मत आ जाए, असी भी गुरु की बाणी अनुसार चलना सीख जाइए। साडे अंदर भी जो दया धर्म धीरज बड़े गुण आ जान, हलीमी बड़े गुण आ जान, परोपकार बड़े गुण आ जान। ते पातशाह जी सानू काम क्रोध लोभ मोह हंकार ईर्खा द्वेष हंकार इस बिरती तो बाहर उठा के सानू सदीवी काल वास्ते एक बाणी का श्रृंगार बख्श देन, ताकि असी भी परमात्मा दे चरण कमलों दे नाल अपना चित जोड़ के इस नाम दे हार दे श्रृंगार दे नाल असी सज जाइए। विचारा करते हुई बेअंत गलतियां माफ करने जी। परवानो जी फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।